Yes, student, PPT is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay. So in last class we have understand how to calculate harmonic mean and geometric mean. So in this class we have start new topic. It is the partition value. So 1 minute partition value. So all of you सबको आता है हाउ टू कैलकुलेट मीडियन कैलकुलेट करना आता है सबको अच्छे से Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू ना सेम वैसे ही करेंगे हम लोग पार्टीशन वैल्यू में तो मीडियन क्लियर होना चाहिए ऐसा नहीं कि हमें मीडियन ही नहीं आता अभी ओके ना तो पार्टीशन वैल्यूज मींस first of all understand what is the partition value. The partition value is the varied value dividing the total number of observation into equal number of parts is known as the partition value. So in median हम median में क्या करते थे we divide the distribution in two equal part. We have dividing two equal part में हम median को divide करते थे. In median we divide the distribution in two equal parts, so it is known as a median. So in partition value, so many types of partition values is there: quartiles, declines, and percentiles, and median is also the part of the partition value. When we divide the series, जो भी series आपके पास है वोटर series, if we divide in two equal part में we divide करते हैं, then I am using median. If I am dividing four part, अगर मैं four part में I have divide, then I have used quartiles. If I divide the series in 10 equal parts, 10 equal parts में if I am divide, then I am using decline. If I am divide the series in 100 equal parts, then I am using percentiles. Okay. So what is the quartiles? Quartiles divide a series into four equal parts. For any series there are three quartiles. Suppose it is my series, ये मेरा series है suppose ऐसे इस ये data यहाँ से तो first part, it is first part, it is second part and it is third part. So it is covered 25% part. ये कितना cover कर रहा है? It is covered 25% part. Then it is covered 50% part. Then it is covered 75% part. Okay. So quartiles divide a series into four equal parts. For any series there are three quartiles. Q1 is covered 25% part, Q2 is covered 50% part and Q3 is covered 75% पार्ट. ओके आपके पास क्या होता है टोटल डेटा कितना है आप 100% अज्यूम करके चलते हैं हर एक में 100% है उसमें से 25% क्या कवर कर रहा है Q1 is covered 25%, Q2 is covered 50% and Q3 is covered 75%. तो ये जो Q2 है ना Ma'am, where is Q4 then? yes Ma'am, where is Q4? Q4 quartiles Yes, ma'am. It will divide into four equal parts. Then only there are only three quarters only. Where yes is the fourth one? अरे एक्चुअली क्या होता है ये सपोज ये मेरा सीरीज है सपोज इट इज सॉरी 1 मिनट इट इज रोलिंग ये इट इज माय सीरीज ये लाइन है लाइन इसमें क्या लिखा क्वार्टाइल डिवाइड द सीरीज इनटू फोर इक्वल पार्ट मैंने इसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्स्ट सेकंड ये थर्ड ये सारा आप मान लीजिए इट इज ऑल्सो 20 ये 100% अज्यूम कर रही हूँ मैं इट इज 25 इट इज 25 इट इज 25 इट इज 25 तो ये कितने पार्ट हुए 4 पार्ट हो गए इक्वल है यस इट इज इक्वल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया सोचे ना ये यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक अगर इफ आई एम कवर अगर मैं सिर्फ इतना सा ले रही हूँ तो इट इज कवर 25% कवर कर रहा है यस या नो Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is known as a Q1. It is covered 25%. अगर if I'm writing यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने इतना लिया है ये इतना सेकंड पॉइंट तो कितना कवर कर रहा है ये इट इज कवर 50%. Q2. तो इट इज नॉन एज ए Q2. इफ आई एम राइटिंग यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने लिया तो इट इज कवर कितना कवर कर रहा है 75. तो इट इज नॉन एज अ
Q3, ये 1/4 तो पहले से इधर कवर हो गया, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये 1/4 लास्ट 25% है. ओके, तो इट इज कवर. So quartiles divide a series into 4 equal parts. For any series, there are 3 quartiles: Q1, Q2, Q3. Yes, the concept is clear. So Q1, So जो if it further from Q3 yes, then Q4. Q4 it is not important. Q4 कितना आएगा? It is ये यहाँ से लेके 100% हो गया, तो मेरी सीरीज कहाँ डिवाइड हो रही है? डिवाइड हो रही है किसी पार्ट में. सपोज मैंने लिख दिया ये 100% है, Q4 मैंने लिख दिया, ये आपका 100% कवर कर रहा है. इफ आई एम राइटिंग, तो आपकी सीरीज कितने मतलब कितना कवर कर रही है? 100% कवर कर लिया है, तो टोटल में यहाँ क्या टॉपिक इज पार्टीशन वैल्यू. हमें पार्टीशन वैल्यू में भी मैंने अगर सपोज 25% कवर किया, तो व्हाट इज द माय वैल्यू ऑफ Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2. ये जो 25% कवर कर रहा है, ये 25, ये स्टार्टिंग का 25 है, इट इज द लास्ट ऑफ 25. बोथ आर सेम. यस, एनी क्वेश्चन? नो मैम. नो मैम. एक बार तो दोबारा part- बताना मैम, रिपीट करना मैम. ओके, आई एम स्टार्ट. व्हाट इज, जैसे आपने मीडियन पढ़ा ना, मीडियन क्या करता है? सपोज ये आपकी सीरीज है, उसको क्या करता है? इट इज डिवाइडिंग टू इक्वल पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये आपके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इट इज नॉन एज द मीडियन. यस, इट इज राइट. Yes, So ma'am. partition value same as the varied value divide the total number of observation. जो भी आपके पास total number of observation है ना, into equal number of part, it is known as the partition value. The equal part may be 2, या तो 2 हो सकता है, may be 4, may be 10, may be 100. Okay. तो here I am defined 2 के लिए, तो आपको ऑलरेडी पता है, it is known as the median. अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो it is known as the median. If I'm divide the series in 4 equal part, then it is known as a quartiles. If I'm dividing 10 part, then it is known as a decline. And if I'm dividing 100 equal part, then it is known as the percentiles. Okay. So quartiles, what is the quartiles? Quartiles divide a series into 4 equal part. For any series, there are 3 quartiles: Q1, Q2, Q3. What is the Q1? Q1 को क्या बोला जाता है? Q1 is known as the first or lower quartiles कवरिंग 25% आइटम. तो ये कवर कर लेता है 25%, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इट इज कवर 25% आइटम. देन व्हाट इज Q2? Q2 इज नॉन एज द मीडियन. इसको सेकंड क्वार्टाइल बोल दीजिए, मीडियन बोल दीजिए, इट इज डिपेंड ऑन यू. Q2 इज नॉन एज द मीडियन ऑफ सीरीज. मींस क्या कर रहा है? ये जो भी आपकी सीरीज थी, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे 50% आ गया. यस या नो? Yes, ma'am. So Q2 is known as the median of the series. Then what is the Q3? Q3 is called the third quartiles और upper quartiles covering 75% item. मतलब 75% part को ये cover कर रहा है. Yes, it is clear all of you? Okay, ma'am. Then next is what is decline? Same as ये क्या करता है? Decline divide a series into 10 equal parts. For any series, there are 9 declines. Denoted as a D1, D2, D9. These told are first decline, second decline, so on. ये मेरा सीरीज है. यहाँ पे इसमें क्या होता है? इट इज डिवाइड इन 10 इक्वल पार्ट. ये मैंने सीरीज किया, मैंने इसको, ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 यहीं फिनिश हो रहा है ना, ये यहीं फिनिश कर दिया मैंने 10. ओके. तो क्या हो रहा है? इट इज कवर, ये आपका 10 पार्ट्स में कवर, 10 पार्ट में डिवाइड हो. ये कितना कवर कर रहा है? इट इज कवर ओनली 10%. इट इज कवर ओनली 10%. So ये हुआ आपका D1. D1 if I am writing D1, तो it is covered 10%. If I am writing D2, D2 कितना कवर कर रहा है? It is covered 20%. यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? It is 20%. तो it is D2. If I am writing D3, अगर मैंने D3 लिखा, तो D3 means it is covered 30% part. 30% of the observation it is covered. If I am writing D4, तो D4 is covered 40%. If I am writing D5, ये D5 हुआ 50%. तो क्या हुआ? It is D5. D5 कितना कवर कर रहा है? It is 50%. So I am writing it is covered 50%.
50% कर रहा means is divide the series in two equal part, then it is also equals to the median. D5 किसके इक्वल होगा? मीडियन के इक्वल होगा. Yes, it is clear. So it is a decline. Then next, as well as Q2 is also equal to median. yes, as well as when your series is divided in two parts, जो भी आपकी series को two parts में divide करता है ना, it is known as the median. आपको पता है, जो जैसे मैंने D5 लिखा, D5 क्या कर रहा है? सीरीज को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इसके बिफोर 50% है, यहाँ पर भी 50% है. इट इज द मिडिल पॉइंट. सो D5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू मीडियन. ओके, देन क्या आ रहा है? देन इट इज नॉन एज अ परसेंटाइल. What is the percentile? Divide a series into 100 equal parts. For any series, there are 99 percentiles denoted P1, P2, P99. How? ये जैसे मेरा सीरीज है, आई एम जस्ट पुटिंग हियर. तो यहाँ पे जो ये हुआ आपका 1%, इट इज 2%, 3%, 4%, सो ऑन 99, 100. सो इट इज नॉन एज, जो आपका P50 होगा, सपोज ये डिवाइड सीरीज का टू पार्ट में डिवाइड, इट इज नॉन एज P50. तो P50 इज अगेन इक्वल्स टू मीडियन. ये मीडियन के इक्वल होगा आपके. सो when you find the percentile, if I find the percentile P1 means only 1%. ये कितना है? Only 1% area, 1% observation is covered by the P1. If I'm writing P10 means it is covered 10% observation, 10% observation. Yes, it is clear. अरे say yes or no. Quartiles, decline and percentile, is this clear all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो क्वार्टाइल्स क्या कर रहा है? क्वार्टाइल इज डिवाइडिंग 4 पार्ट. ये 4 में डिवाइड कर रहा है. डिक्लाइन किस में डिवाइड कर रहा है? इट इज डिवाइडिंग 10 पार्ट्स एंड परसेंटाइल इज डिवाइडिंग 100 पार्ट. So it is the concept of quartiles, decline and percentiles. Okay. So now calculation of quartiles, decline and percentile for a n-group data यानी डिस्क्रीट सीरीज एंड इन इंडिविजुअल सीरीज. तो सपोज आपका Q1 है. हाउ टू कैलकुलेट Q1 इफ n इज द ऑड नंबर? n इज अगर आपका ऑड है, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट? तो इट इज जस्ट अ फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 4. 4 किया आपने, ये याद रखना. व्हेन यू फाइंड द क्वार्टाइल्स तो आपको 4 से डिवाइड करना है. व्हेन यू फाइंड द डिक्लाइन देन यू डिवाइड बाय द 10. और अगर आप परसेंटाइल फाइंड कर रहे हैं देन यू हैव डिवाइड बाय द 100. ओके, तो आपने क्या फाइंड किया? Q1 फाइंड किया. Q1 क्या कर रहा है? 25% मींस ये डिवाइड कर रहा है 1/4 में. आपको आपके डेटा तो 1/4% यू हैव जस्ट टेक. तो n+1 डिवाइड बाय 4, n+1 डिवाइड बाय 4 फॉर अ आइटम. मतलब यहाँ पर जो भी सपोज n मेरा कितना हुआ? 7 हुआ. 7 + 1 डिवाइड बाय कितना हुआ? अपॉन 4. तो 8 + 1 डिवाइड बाय 2, ये 2. जो मेरा सेकंड नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगा ना, सेकंड नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगा, इट इज माय फर्स्ट क्वार्टाइल. ओके, जैसे मीडियन में लिया था आपने करस्पॉन्डिंग वैल्यू, सेम ऐसे लेना है. देन आई जस्ट वांट टू फाइंड द Q3. Q3 क्या कर रहा है? जैसे आपका ये पार्ट था, ये 25% हुआ, ये आपका 50% हुआ, ये आपका 75%. ये कितना हुआ? ये 1/4 हुआ, ये हाफ हुआ, ये कितना हुआ? 3/4. Yes or no? Yes, ma'am. All of you agree? First कितना हुआ? 1/25%, मतलब ये 1/4 cover कर रहा है. 50% is means it is cover 1/2 part. If I am writing 3/4 means it is cover 75% area. When you divide 3/4, it is 0.75. Okay. So Q3, how to calculate Q3? आपको Q3 calculate करना है. You just multiply by 3 n+1 divide by 4th item. Yes, it is clear all of you? Yes, ma'am. ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा. जो भी वैल्यू आएगी आपके पास एक सिंगल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा, कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं आएगा. आपका 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आएगा आ जाएगा. ओके, देन इफ n इज द इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो देन हाउ कैन यू कैलकुलेट? So we have take example, through example we can understand. So find the quartile of the frequency of the following age. आपको age given है, data is related to age. आपको क्या find करना? Quartiles find करना.
तो जैसे मीडियन का कंसेप्ट क्या होता है? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द कंसेप्ट फॉर मीडियन? व्हाट इज फॉर द मीडियन? मीडियन में क्या करते हैं हम सबसे पहले? We can arrange the series in increasing order and decreasing order. Ascending and descending. Yeah, ascending and descending order. तो क्वार्टाइल्स में भी आपको सेम वही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अरेंज द सीरीज. आपको सीरीज अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो फर्स्ट वी नीड टू अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया. ये मेरे पास नंबर थे. So I have arranged 13, 16, 23, 26, 26, 35, 35, 7. I have arranged. तो n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. n is 8. 8 है आपका n. तो n is even number. Even number है. How to calculate? First of all, you find n plus 1 divided by 4 किया आपने. 8 plus 1 divided by 4 कितना आया? 2.25 आया. Yes. तो आपके पास 2 तो कंप्लीट आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 0.25. 0.25 मींस हाउ टू कैलकुलेट द फॉर फॉर्मूला इज दिस. सेकंड टर्म, जो भी आपका सेकंड टर्म है वो लिखना, प्लस 0.5 आपका क्या आ रहा है? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है. 2 पॉइंट समथिंग. तो इट इज थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. ये 2 आ रहा है. 2 से नेक्स्ट टर्म क्या होती है? थर्ड. थर्ड माइनस सेकंड. तो यहाँ पे थर्ड कितना है? 23. यहाँ पे 16 है. ओके ना, इट इज 16. तो 23 माइनस 16 you just multiply by 0.25, then you just add by 16. ओके, ये आंसर गलत है. ये मैंने यहाँ पर 26 ले लिया था बाय मिस्टेक. सो क्या हुआ? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. थर्ड कितना है? 23 है. माइनस सेकंड कितना है? सेकंड टर्म इज 16. तो 23 माइनस 16 you just multiply by 0.25, then you just plus 16 से प्लस करना है. Okay, it is clear how to calculate Q1? Yes, ma'am. Yeah. Yes, Vinay, it is clear? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then Q3. अब Q3 कैलकुलेट करना है. तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. 3n plus 1 by 4th आइटम टर्म. तो 3 8 इज 6.75 आया आपके पास. 6 कंप्लीट है तो मैंने यहाँ 6 टर्म लिखा. 0.75 एक्स्ट्रा तो प्लस 0.75. तो 6 है तो 7th माइनस 6. तो 7th कितना है? 7 6 35 है. 6 भी 35 है तो 35 माइनस 35 इट इज 0. तो Q3 इज 35. यस, इट इज क्लियर? आया समझ में? तो मैम ये पॉइंट का नहीं लगेगा ना जब ये 0 आ जाए तो? हाँ, तो 0 आने के बाद 0 तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना. यस मैम. क्या सपोज ये आपका हुआ क्वार्टाइल्स आपने कैलकुलेट कर दिया. सपोज आपको डिक्लाइन कैलकुलेट करना होता. सपोज आप यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट द D2 कैलकुलेट करना है. तो हाउ टू कैलकुलेट? यस, एनीवन कैन गिव आइडिया? सपोज फॉर दिस सीरीज, ये सीरीज सेम है मेरे पास. इस सीरीज के लिए आई वांट टू कैलकुलेट D2. यस, एनीवन? मैम D2 n plus 1 divided by 8. ये क्या हो रहा है? 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा. फिर क्या है? n plus 1 डिवाइड बाय, ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है सीरीज को? इट इज डिवाइड इन 10 पार्ट. तो इट इज 10. ओके, तो 2n plus 1 डिवाइड बाय 10. यस मैम. ओके, जो भी आपका नंबर आएगा देन यू हैव अप्लाई दिस कंसेप्ट. ये जो भी 0.25 जितना भी आएगा ना यहाँ पे, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस. Hello. ओके, Ma'am, when we have to calculate D5, then we have to multiply it by 5. yes, if you if you calculate the D5 means कितना कवर कर रहा है? 50% एरिया कर रहा है. तो ये 5 डिवाइड बाय कितना हुआ? 10 n plus 1. ओके, मैम अगर ये ओड नंबर हो, इवन ना होकर तो भी +1 करेंगे. देखो ये मेथड सब में सेम लगा. यहाँ पर भी मैंने n plus 1 डिवाइड बाय 4 किया है. यहाँ पर भी n plus 1 डिवाइड बाय 4 किया है.
बोथ, ये इवन है तो भी ये है, ओड है तो भी ये सेम है, बट द डिफरेंस इज दिस, अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा आता है इट इज नॉट ए होल नंबर, आपको इंटीजर में नहीं मिल रहा है, ये आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो ये जो भी फ्रैक्शन वाला नंबर है, जो भी पॉइंट में नंबर्स है, उसको आपको जो भी कंप्लीट टर्म है, सेकंड है, सेकंड से नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड, थर्ड माइनस सेकंड करके उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके मैम। ठीक है, समझ में आ गया? अगर Yes, सपोज अब मुझे परसेंटाइल कैलकुलेट करना हो तो देन हाउ कैन आई कैलकुलेट? सपोज आई वांट टू कैलकुलेट P85, 85% I want to calculate P85. How can I calculate? 85 into n plus 1 upon 100. 85 divided by n plus 1, sorry, n plus 1 divided by 100 100 से डिवाइड करना है। ओके ठीक है, आया समझ में? So now if frequency is given, अगर frequency given है तो how can I calculate the quartiles, decline and percentile? Students same as median, जैसे median में हमने calculate किया था ना, जब frequency given है तो how to calculate? First of all क्या करना होता है, find, वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ n by 2 किया जाता है, यहाँ पे we have dividing 4 पार्ट तो n by 4, n by 4 इट्स डिपेंड j, ये मैंने क्या लिखा, j n by 4, द वैल्यू ऑफ j कितना हो सकता है, q1 q2 q3, q1 q2 q3, तो द वैल्यू ऑफ j इज 1 2 3, तो फाइंड j n by 4 where n is, what is the n is the summation of frequency, then see the cumulative frequency is just greater than j n by 4 and the corresponding value of h is जो भी आपका क्वार्टाइल्स यू हैव कैलकुलेट। ओके ऐसे मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग स्टूडेंट, यस एंड नो? Yes, ma'am. है ना, सेम मेथड है, सेम है, नथिंग विल चेंज। मीडियन में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम क्वार्टाइल्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिक्लाइन है तो 10 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटाइल है तो 100 परसेंटेज है से, तो 100 से करेंगे। और यहाँ पर ही j क्या है, j इज द q1 q2 q3, अगर q क्वार्टाइल्स फाइंड कर रहे तो j का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 2 3, अगर आप q3 कर रहे हो तो q3 क्या होगा, q3 आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इट इज 3 n by 4, अगर आप q2 कैलकुलेट करते तो क्या होता, 2 n by 4, तो इट इज सेम एज द मीडियन, 2 से 2 डिवाइड किया तो कितना आया, n by 2। ओके ओके तो सेम फॉर द डिक्लाइन, डिक्लाइन में क्या करेंगे हम, जस्ट डिवाइड बाय 10, j का वैल्यू कितना होगा 1 to 9, परसेंटाइल है तो आप जस्ट डिवाइड बाय द 100, द वैल्यू ऑफ j इज 1 to 99। ओके वी हैव टेक वन एग्जांपल, कैलकुलेट q1 q3 d6 एंड p85 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास ये डेटा है, उसके लिए क्या कैलकुलेट करना मुझे, q1 q3 d6 एंड p85। सो h is given to, f is given to you, just find the cumulative frequency। आपने फाइंड किया, फाइंड कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 3 3 plus 4 7 7 plus 4 sorry 7 plus 5 12 12 plus 12 24 24 plus 10 34 34 plus 7 is 41 41 plus 5 46 46 plus 2 48 48 plus 1 is 49, the total of frequency is also 49 and cumulative frequency आपने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करना आपको, we have just find j n by 4, तो j n by 4, j का वैल्यू कितना है 1 और 3 for this quartiles, तो मैंने j का वैल्यू 1 रखा तो इट इज 49 by 4, n कितना आ रहा है, समेशन ऑन n फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 49 डिवाइड बाय 4 इट इज 12.25 12.25। तो हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12.25 से जस्ट ग्रेटर देन कितना है 24 है, उसके करेस्पॉन्डिंग x कितना है 13, इट इज 13, तो योर q1 इज 13, then find q3, what is q3, we have just multiplied j, तो j कितना हो 3 3 multiply n by 4, तो it is 36.75,
36.75 is just greater than cumulative frequency is 41. 41 की corresponding कितनी वैल्यू है? x 15, तो q3 is 15. Then we find d6. d6, what is the d6? d6 6 से मल्टीप्लाई करना आपको, 6 मल्टीप्लाई 49 by 100, तो इट इज 29.4. 29.4 से ग्रेटर देन कितना है? इट इज 34. यस, यस मैम, तो 34 की करस्पॉन्डिंग कितनी हुई वैल्यू? 14. मैम 14, तो d6 कितना हुआ? 14. देन यू वांट फाइंड p85, तो 85 मल्टीप्लाई n and summation of n frequency डिवाइड बाय 100, तो इतना कितना है? 41.65. 41.65 से ग्रेटर देन कितना है? 46. तो 46 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आया? मैम 16. 16. तो सपोज एनीवन कैन फाइंड यस मैम, d7 फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है? Do fast. D7. Yes, d7. एक मिनट रुको मैम. Yes, all of you. Yes, all of you find the d7. Yes, Vinay, Parth, Vishal. What is your d7? मैम 15. Yes, d7 is 15. सबका 15 आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Anik, मैम it is 15. 15. मैम 15. Yes, ma'am. Yes, all of you have got 15. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, yes, Divya, 15 आ रहा है आपका? Yes, ma'am. Okay, so I think for the continuous frequency के लिए how to calculate the median. So same जो फॉर्मूला मीडियन में था, सेम फॉर्मूला यहाँ पर है. सिर्फ व्हाट इज द चेंज? द चेंज इज दिस. ये जितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे उस पार्ट को वो चेंज हो जाएगा. ओके, यस मैम. so quartiles in case of continuous frequency distribution, the class corresponding to the cumulative frequency just greater than by 4 is called the quartile class. हमने लास्ट मीडियन क्लास पढ़ा था ना, मीडियन क्लास. यहाँ पे for quartiles it is known as a quartile class, for decline it is known as a decline class, for percentile it is known as the percentile class. Now what is the formula? Formula is that qj plus l plus h by f j n by 4 minus c. Formula is same, but it is divided by 4 and multiply by j. The change is this. So L, what is the L? L is the lower limit of the quartile class. H is the difference of the class, means magnitude of the class. What is the F? F is the frequency of the quartile class. Then what is C? C क्या होता है? Yes, anyone can बताएंगे C क्या होता है इसमें? C is the cumulative frequency before the quartile class. जो भी आपकी quartile class आएगी ना, उससे पहले वाली जो frequency होगी, it is known as the C. It is known as the C. Same for the decline. Decline में क्या करेंगे? The notation for this is dj L plus h by f j n by 10 minus C. तो percentile में क्या करेंगे? L plus h by f j n by 100 minus C. The notation is same, L, H, F सब same है, but सबके लिए if I am calculate percentile तो percentile class होगा, if I am calculate decline तो decline class होगा, if I am calculate quartiles then quartile class. Okay, according to this we have select the value of L, H, F, C. ठीक है? Yes, student. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So calculate Q1, Q3, D8, P56 from the following data आपके पास है. तो आपने डेटा लिखा, F लिखा, CF आपने फाइंड किया 20, 22 plus 38, 60, 60 plus 46, 106, 106 plus 35, 141, 114 plus 9, 160.
द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज n1/n160 आ रहा है. तो व्हाट इज द Q1? Q1 का फॉर्मूला क्या हुआ? L plus H by F n/4 minus C. इट इज द फॉर्मूला. ये आपने लास्ट में पढ़ा है अभी. L plus H by F. अच्छा, Q1 फाइंड कर रही हूँ, J1 है तो यहाँ 1 हुआ n/4 minus C, तो मैंने लिखा n/4 minus C. तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है मुझे? क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी है. क्वार्टाइल क्लास कैसे फाइंड किया जाएगा? मीडियन में हम क्या फाइंड करते थे? n/2 फाइंड करते थे. यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? n/4. n कितना आ रहा है? 160 डिवाइड बाय 4. 160 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 40. 40. यस. तो 40 से ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये है 60. मैम 60. तो इट इज योर क्वार्टाइल क्लास फॉर Q1. आपके लिए क्वार्टाइल क्लास आ गया. ठीक है. अब आपकी लोअर लिमिट कितनी हुई इसमें? 10 प्लस H, डिफरेंस 10 का, तो 10. F कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, इट इज 38. तो 38 लिखा. n/4. n/4 कितना आ रहा है? 40 माइनस C. C क्या होता है? जो भी आपकी क्वार्टाइल क्लास होती है बिफोर द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल क्लास इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी आपकी क्वार्टाइल क्लास होती है उससे पहले CF कितना है? इट इज 22. So I'm just writing 22. When I'm calculate, then Q1 is 14.74. Yes, it is clear, all of you. Yes ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, no, Okay. ma'am. No, किसने बोला no? पार्ट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडियन कैलकुलेट करना आता है? यस या नो, ये बताइए पहले आप. Yes, चलो, ma'am. नहीं आता है ना. सेम वही मेथड है. ये आपको x है, आपको गिवन है वेजेस, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है. आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आता है? पार्ट. Yes, ma'am. आता है. आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली. ठीक है, इतना हो गया. ये f है. f का समेशन आपने इसका टोटल किया तो कितना आया? इट इज 160. इनको जब आपने ऐड किया इट इज 160. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया. अगर आपकी सीरीज कॉन्टिन्यूअस हो मतलब अगर आपकी सीरीज इंटरवल में गिवन हो, डेटा किसमें? इंटरवल में गिवन है, तो हाउ टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स, डिक्लाइन एंड परसेंटाइल. तो मैंने ये फॉर्मूला क्या है? QJ L plus H by F J n/4 minus C. तो मैंने यहाँ पे J का वैल्यू कितना लिया? 1 लिया. तो कितना हो गया? L plus H by F n/4 minus C. Yes, it is clear. Yes, ma'am. है ना. अब तो मुझे सबसे पहले फाइंड क्या Why करना do we है? choose the ओके, कोई बात 10 नहीं. and 21? मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी. क्वार्टाइल क्लास कैसे फाइंड की जाती है? In case of continuous frequency distribution, the class corresponding to the cumulative frequency just greater than J n/4. आपकी वैल्यू J कितनी? 1 है. n/4. n/4 से जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होगी ना, वो आपकी क्या होगी? क्वार्टाइल क्लास. तो मैंने n/4 फाइंड किया. कितना आया? 40 आया. तो 40 से मैंने देखा कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है. 40 से ग्रेटर देन कितना है? 60. यस. यस पार्ट है ना. तो ये मेरी, ये जो मैंने डिफाइन किया ना, ये दिस ये रेड जितना दिखा है, इट इज नोन एज अ क्वार्टाइल क्लास फॉर माय Q1. Q1 के लिए मेरी ये क्वार्टाइल क्लास है. ठीक है. तो मेरे नोटेशन क्या थे? L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास. H क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मतलब जो क्लास इंटरवल है उसका साइज कितना है. F क्या होता है? F is the frequency of the quartile class. C क्या है? C is the cumulative frequency before the quartile class. So one by one I am just writing. L क्या है? L is the lower limit of the quartile class. ये तो मेरी lower limit कितनी है इसमें? 10 है. So I am just putting 10 plus H. H क्या होता है? Size of the class. 10 to 20 में कितना difference आ रहा है? 10 का. So I am just taking 10. What is F? F is the फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास. जो भी क्वार्टाइल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 38 है. यस पार्ट, इट इज 38, राइट. आई एम जस्ट पुटिंग हियर 38. देन n/4 कितना आया? 40 आया. अब मुझे C चाहिए. C क्या था? आई विल रिपीट अगेन. C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द क्वार्टाइल क्लास.
बिफोर द क्वार्टाइल क्लास, मेरा सॉरी, क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल क्लास मेरी ये उससे बिफोर पहले कितनी है, 22 है, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर 22। यस इट इज क्लियर, यस मैम। अब क्लियर हो गया। तो इट इज योर Q1 आ गया आपका। देन क्या फाइंड करना आपको, Q3 फाइंड करना है। Q3 के लिए सेम फॉर्मूला L प्लस एच बाई एफ, ये जो n होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर j का वैल्यू कितना है, ये मैंने जैसे यहाँ पर डिफाइन किया, j है, ये मल्टीप्लाई बाई j, तो j इज 3, तो 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3n/4 माइनस c। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मुझे क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी होगी Q3 के लिए, तो हाउ टू फाइंड 3n/4, 3n/4 क्या, इट इज 120 आया, तो 120 से ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 141। Yes, all of you agree? Ma'am, all this data is given in Yes, ma'am. है ना, तो it is 141, तो 141 it is हमारे क्वार्टाइल क्लास फॉर द Q3, ये Q3 के लिए मेरी क्वार्टाइल क्लास हो गई। तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू, व्हाट इज द L, L इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है, 30 है, 30, H तो सब में सेम रहता है, H इज 10, 10, फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 35, तो आई एम जस्ट राइटिंग 35, then 3n/4, 3n/4 when you have calculate is 120, तो आपने लिख दिया is 120 माइनस c, c के और इससे पहले जो भी क्वार्टाइल क्लास आई उससे पहले बिफोर दिस व्हाट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज 106, तो आई एम जस्ट राइटिंग 106, व्हेन आई हैव कैलकुलेट देन इट इज 34, तो Q3 कितना है आपका, Q3 इज 34। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे से यस या नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Vinay, it is clear. Yes. So next, yeah, I just want to calculate D8. I just clear all this thing first of all. I just erase. I just want to All this calculate. formula. I just calculate D8. आपको D8 calculate करना है. तो आपके पास डिक्लाइंस का फॉर्मूला है. It is your formula. dj L plus h by f j n by 10 minus c, तो आपको क्या करना है, D8, तो j कितना हुआ आपका, इट इज 8, तो आपने L plus h by f d j कितना 8 n by 10 minus c, लेकिन उससे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिक्लाइन क्लास फाइंड करना है। डिक्लाइन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, j n by 10, j कितना है 8 मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय 10, n कितना है आपका 160, तो हम जस्ट फाइंड 8n by 10, इट इज 128, 128 से ग्रेटर देन कितना है, 128 से ग्रेटर देन आपका 141 है, तो इट इज डिक्लाइन क्लास फॉर योर, डिक्लाइन क्लास फॉर योर फॉर दिस। तो L कितना और लोअर लिमिट इज 30 प्लस H 10, F इज 35, 8n by 10 इज 128 माइनस C, C कितना बिफोर, इससे पहले what is your cumulative frequency is 106, so I am just putting 36.29, so D8 is 36.29, okay, then I just want to calculate P56, तो P56 के लिए I am just applying this formula is same, just जिससे आप डिवाइड करो, अगर आप 100 पार्ट में डिवाइड करो तो 100 से डिवाइड करना, 10 पार्ट में डिवाइड करो तो 10 से डिवाइड करना, इफ यू वांट टू डिवाइड इन 4 पार्ट तो 4 से डिवाइड करना, ओके। So I am just first of all I am just find percentile class, then I am just apply, तो j n by 100, तो j कितना है यहाँ पे 56, तो 56 n डिवाइड बाय 100, n कितना है 160, मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, कितना आया 89.6, कितना आया 89.6, 89.6 से ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी कितनी है 106 है, यस स्टूडेंट इट इज 106, so it is 106, so it is your percentile class for this, तो मैंने वैल्यू पुट किया, L कितना आया 20 लोअर लिमिट प्लस 10, F कितना है 46, 89.6 माइनस इससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, तो P56 कितना आया 26.43, 26.43, yes this is clear all of you how to calculate? Yes, ma'am. Yes, all of you. अब देखो, अब इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, Q1 मीन्स क्या होता है, इट इज कवर
25%. Q3 मीन्स क्या होता है? इट इज कवर 75%. D8 मीन्स क्या होता है? इट इज कवर, मैं परसेंटेज में बात कर रही हूँ, इट इज कवर 80%. P56 मीन्स इट इज कवर 56%. सो 25% है तो 14 आया. अगर मैंने बोला मेरा 56 है तो मेरा देखो वैल्यू ये 56 इतनी आ रही, 26.43. 75 है तो ये 75 के लिए 34 आ रहा है. 75 से थोड़ा ज्यादा हुआ, 80% कवर करा तो इट इज 36.29. तो स्टूडेंट व्हेन यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन ना, जब आप सॉल्व करते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q1? Q1 मींस ये 25% एरिया कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है 80%. तो ये आपका 75% कवर कर रहा है और ये 80% कर रहा है, तो ऑलवेज इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी एज कंपेयर टू Q3. अगर मैंने सपोज D7 निकालती मैं, इफ आई फाइंड D7 तो इट इज कवर 70%, इट इज कवर 70%. तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू इट इज लेस देन 34 से छोटा आता. ओके, इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर आपका आंसर चेक करना हो, आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर मैंने बोला ये 25% कवर करता तो ये 25% वैल्यू ही कवर करेगा. ये 75% कवर करता तो ये इससे मिनिमम ही होगा. ओके ना? Yes, student, any question? No, ma'am. Yes, पार्थ No, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, दिव्या. Yes, ma'am. और कौन है यहाँ पे? पार्थ है. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6 student is there. Where is Vinay? Yes, the Naveen, it is clear. Yes, ma'am. And Preetam Agarwal. Yes, Preetam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Means सबको समझ में आ गया ना how to calculate partition values. Okay ना? So next class we have start measure of dispersion. All The topic is formulas are measure of dispersion. given. Yes, Parth. Ma'am, all this data This- and formulas given in the book. ये पार्ट, ये जो भी पीपीटी, जो भी पीडीएफ फाइल होता है ना, आई हैव ऑलरेडी, मतलब मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे वो अपलोड कर दिया, तो आप वहां से चेक कर लेना. ठीक है? वहां पे सारा पीपीटी जितना मैंने अभी तक कवर किया ना, वहाँ पे सारा पीपीटी सब कुछ नोट्स वहाँ रखा हुआ है, तो यू जस्ट चेक. ओके ना? आपके पास गूगल क्लासरूम का आईडी है? यू हैव? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके. यस, एनी क्वेश्चन? Ma'am, the today is 5 to 6. Yes, I will take your class 5 to 6, Vishal and you. Hello. Vishal is not. Yes. मैम क्लासरूम की आईडी एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हो? दीपांशु के पास नहीं है. पांच तो अभी क्लास में है ही नहीं. नो मैम, उसने मुझे कॉल करके बोला था. तो आपके पास है ना, तो आप दे देना. मैम वो नहीं है तो कोड नहीं है क्लास का मेरे पास. एक ही तो आईडी है भाई, उसके लिए कितना मतलब आप लोग करोगे? 1 minute वेट है ना, आई विल गिव यू. आप लोग मतलब ये पूरे सेमेस्टर के लिए इस आईडी को संभाल के रखिए, इस पिन कोड को. होल सेमेस्टर में सारा यही अपलोड करने वाली हूँ. ठीक है? यस मैम. है ना? तो अभी जस्ट मतलब आप रखिए ध्यान में कि ऐसा है. मैं सेंड कर दिया उसको. अच्छा, प्रीतम ने सेंड कर दिया. आई विल अगेन सेंड यू. सॉरी, ये क्या सेंड हो गया? कॉपी नहीं हुआ. 1 मिनट. मैं उसका 24 आंसर भी आ गया. 24 आ गया. गुड. क्या मिस्टेक किया था? मैं वो सीक्वेंस में नहीं लिखा, मैं असेंडिंग हाँ, ऑर्डर में लिखा. उसको सीक्वेंस में अरेंज करना था. हाँ. Okay. Yes, Parth and Vishal. Vishal is not there, but Parth and Vishal, you are ready for your special class at 5 o'clock. Okay. Okay, Parth. Yes, ma'am. Okay.
So it is almost 12:15